धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
अनगिनत कलाई मुझ पर, करुणा तेरी जब स्मरण करूं, धन्यवाद के सिवाय पिता नहीं जुबां पे कोई और बयान, स्तुति के सिवाय पिता नहीं जुबां पे कोई और बयान, तेरे प्रेम को याद करो, कृपा स्मरण करो, कैसे तेरी स्तुति ना करूं, तेरी करुणा याद करो, बलिदान पर सोचो, कैसे तेरी स्तुति ना करूं, मेरे यीशु, मेरे यीशु। साची से तूने है प्रेम किया, अपना जीवन को कुर्बान किया, धन्यवाद के सिवाय पिता नहीं जुबां पे कोई और बयान, स्तुति के सिवाय पिता नहीं जुबां पे कोई और बयान, तेरे प्रेम को याद करो, कृपा स्मरण करो, कैसे तेरी स्तुति ना करूं, तेरी करुणा याद करो, बलिदान पर सोचो, कैसे तेरी स्तुति ना करूं, मेरे यीशु, मेरे यीशु। बहुत धन्यवाद सिस्टर सिद्धि फॉर दोस वंडरफुल सॉन्ग्स दैट यू sang फॉर अस। आज के वचन ब्रदर गॉडली हमारे सामने लाएंगे। मैसेज को ट्रांसलेशन में मदद करने के लिए हमारे साथ इवेंजलिस्ट सिपिर कुमार फ्रॉम एमपी मध्य प्रदेश है हमारे साथ। वो आज ट्रांसलेशन में हमारे मदद करेंगे। परमेश्वर के वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए मैं अंकल पायली वर्गीस को रिक्वेस्ट करता हूँ। Let's bow our heads in prayer. Gracious God, our loving Heavenly Father, we thank you again for this blessed opportunity that you have given to us to gather together in this fashion as we remember in the first prayer. As we remembered, Father, we have joined from different parts of the world, and it is so pleasant and it is so loving to see our beloved brothers and sisters from different parts of the world and to be together in your presence in this fashion. Father, we once again thank you for the blessed hymns that we were able to hear from Sister Siddhi and Brother Rohit. And we thank you for the skill that you have given to them to sing and glorify your name. We thank you for all the dear ones who have joined from different parts. And when we are sitting in your presence in front of your word, we pray that you may govern us with your Holy Spirit, that we may open our hearts to the message that you are going to give to each one of us. We especially commit young brother Godly in your loving hands, and we pray that you may bless him, that you may strengthen him with your Holy Spirit
Fill him with your Holy Spirit, Father, so that he can speak whatever you need to speak to us through him, so that we all, hearers as well as a speaker alike, we all may be blessed. Father, we know that we are living, as we remember, in a world full of problems. And we know that especially this pandemic, COVID-19, is doing a lot of harm to many people. Even as we remember from the Brother John George, there are many people who are called into your presence through this COVID. But yet you have left some of us here in this world to magnify you, to glorify you. So, Father, when we sit in your presence, speak to our hearts, so that how we may change our course, how we may be used for your glory in the coming days. We may be able to listen to the word, and also if there is any changes required in our day-to-day life, help us to do that, oh Father. We thank you for Brother David and Sister Susan and the beautiful children. We thank you that you have been using them immensely in that part of the world. And we thank you for the burden that you have given to them to do your ministry in that part. And then through that, there are many souls that were profited. And so we pray that you may bless each one of them. At this time, we also pray for the assembly there. We pray that you may bless that assembly, Father. We also pray for Brother Sibyl Kumar, as he is going to interpret this message into Hindi. And so we pray that you may give him all the necessary grace to do that translation truthfully for your glory, so that people who can listen the message through Hindi can be blessed in that aspect also. We thank you once again for all the dear ones, Father. We give you thanks and glory. We thank you for the blessed privilege that you have given to us to be called the children of God. We humble ourselves in your presence, and we look to your face for your message, and give you thanks and glory. Majesty is yours, and we are asking all these things in the most precious and worthy name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Greetings to all in the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्वागत है। I thank the Lord for helping me and giving me an opportunity to speak God's word in front of all of you. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ऐसा एक मौका मेरे जीवन में दिया है कि परमेश्वर का वचन को मैं आप लोगों के सामने रख पाऊं। I especially thank all those who are joining in this meeting, Lord. I request all to prayerfully sit before God's presence, so that God's word may be spoken through me. मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सब लोग दुआ और प्रार्थना के साथ बैठिए कि जो वचन आज आप लोग सुनेंगे वो वचन आपके जीवन में कार्य करे। When we come before His presence, nothing is for our own glory, but is everything for God's glory. जब परमेश्वर के सन्मुख हम लोग आते हैं तो ये अपनी महिमा के लिए नहीं बल्कि उसकी महिमा के लिए सब कुछ होता है। Even the word which we the word which is spoken in the church or in a gathering, it is for our correction, and through our correction, it is for the glory of God. मेरे प्यारो, जो कलीसिया में वचन बोई जाती है और प्रचार की जाती है, और जहां पर एकत्रित हम लोग होते हैं, वहीं पर जब वचन को प्रचार किया जाता है, ये जो सुधार होती है उसके जरिए परमेश्वर की महिमा होती है। So for today's meditation, I would like to bring before you two characters, which is very common characters. और आज का ध्यान के लिए मैं ऐसे दो स्वाभाविक जो विषय है, बात दोनों स्वभावों को मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। वो जो स्वभाव, जो चरित्र है, वो हमारे लिए जाने पहचाने हैं।
character in the sense persons, two people, हाँ, two स्वभाव मतलब persons. हाँ स्वाभाविक है, मतलब जो व्यक्ति विशेष के विषय में मैं कहना चाहता हूँ। No, brother, two persons, two personalities, two people. दो व्यक्तित्व के विषय में मैं कहना चाहता हूँ। Okay, it is very common, and we all know about them. It is Abraham and Lot. और हम लोग सब लोग जानते हैं कि वो जो दोनों व्यक्ति विशेष है वो अब्राहम और लोत। Before going into that, I would like to give you a small brief or a small introduction about the book Genesis. और इन दोनों व्यक्ति विशेष के विषय में अध्ययन करने से पहले उत्पत्ति का जो पृष्ठभूमि के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Genesis normally reveals the prominence of the blessing and the cursing. और मेरे प्यारो उत्पत्ति जो है हमें ये प्रकाशित करता है कि वहां पर आशीष और जो है अभिशाप के विषय में बताया गया है। For obedience, for every obedience there is a blessing, and every disobedience there is a curse. और हर जो आज्ञाकारिता के लिए आशीषें हैं और अनाज्ञाकारिता के लिए वहां पर श्राप को देख सकते हैं। And it starts from the very beginning of the book till the end. और ये जो बातें हैं जो शुरुआती जो पुस्तक की शुरुआती में ही हम लोग देख सकते हैं। And I guess that's the main theme, blessing and the curse. और आज का जो मुख्य विषय होने वाली है वो है हम लोग देखेंगे कि आशीष और श्राप। But the main, what I think, the other thing that Genesis points out is the promised land or the promised nation which God promised to Abraham. और मैं जो समझता हूं कि इस पुस्तक में अब्राहम को जो परमेश्वर ने जिस वाचा को बांधता है वो वाचा एक देश को देने वाला है, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं समझता हूं। And the book of Genesis is mainly divided into two major sections, which are 4 events and 4 people. और जो उत्पत्ति का पुस्तक को 2 भागों में भाग किया गया है और ऐसे 4 घटनाएं हैं और 4 लोग भी हैं। The first, we see the first part, that is the 4 events, that is creation. और हम लोग देखते हैं कि 4 ऐसी घटनाएं हैं। पहली घटना है सृष्टि के विषय में, Second is corruption, third is destruction of man, और दूसरा है अपने आप को जो है लोग नष्ट करने के विषय, और फिर बाद में जो मनुष्य का जो पतन के विषय में हम लोग देख सकते हैं। and the fourth is dispersion of man and the nations, that we see in chapter 10 and 11. और जो है 10वां और 11वां अध्याय में हम लोग देखते हैं लोगों का बिछड़ने का, तितर बितर होने के विषय में। And the next part, the next major section which we see is 4 people, that is Abraham, Isaac, Jacob and Joseph. और मेरे प्यारो फिर बाद में दूसरे भाग में हम लोग जब देखेंगे तो जो है 4 व्यक्ति विशेष को हम लोग देख सकते हैं। पहला है अब्राहम, और दूसरा है इसहाक, तीसरा है याकूब और चौथा यूसुफ। From which today I would like to bring in front of you Abraham, and with him I would like to bring Lot. और मेरे प्यारो इस घटनाओं में से मैं जो है 2 व्यक्ति के विषय में मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं, वो है अब्राहम और दूसरा है लूत। So let's turn to Genesis chapter 11 verse 31. और आइए हमारा जो अध्ययन के लिए उत्पत्ति उसका 11 अध्याय और 31वां पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। There we see, and Terah took his son Abram. 11 अध्याय 31वां पद। 11 अध्याय और 31वां पद। और तेरे अपना पुत्र अब्राहम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश जाने को चला।
पर हरान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। We see here that sorry, thank you, brother. We see here that Abraham, he was the son of Terah, और यहाँ and पर we हम लोग see we read about Lot. और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि अब्राहम जो है तेरह का पुत्र था और जो है उसका पोता लूत था। And we see that they were living in the land of Chaldeans. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो है कसदियों की जो देश में वे लोग रहते थे। But what today I am going to speak is that God called Abraham. Pardon me, brother. Today what I am going to speak is that God called Abraham, and Lot, he took Lot with him. I did not get what Abraham. Abraham was called by God and he took Lot with him. और मेरे प्यारो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम ने लूत को लेकर के गया। That we see in chapter 12 verse 1 to 5. We no need to read that, but there we see that God called Abraham and he said that get out of your house and I will make you a big nation. और मेरे प्यारो हम लोग देखते हैं कि 12 अध्याय पहला पद से 5वां पद तक वहां पर जो है अब्राहम को परमेश्वर बुलाता है और अब्राहम को कहता है कि मैं तुमको जो है तुम्हारे वंशज को एक बहुत बड़ा देश के रूप में मैं बदलूंगा। So the first point that I want to bring in front of you is the calling and the choice of city that Abraham had. और मेरे प्यारो पहली बात को आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं वो विषय ये है कि अब्राहम का बुलाहट के विषय में मैं बताना चाहता हूं। Abraham was called to a city. God told that I will give you the land of Canaan. और मेरे प्यारो आप देखिए यहाँ पर कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाते हैं और अब्राहम को कहते हैं कि ऐसा एक शहर व ऐसा एक नगर को दूंगा, वो नगर कनान है। When we come to chapter 13, we see Lot was also with Abraham in Canaan. और मेरे प्यारो जब 13 अध्याय को हम अध्ययन करते हैं तो लूत भी अब्राहम के साथ कनान में होते हैं। But we see there are a few conflicts between the servants of Abraham and the servants of Lot. और फिर मेरे प्यारो हम लोग इन दोनों के बीच में एक जो है छोटी सी झगड़ा व विरोधाभास को हम लोग देख सकते हैं। वो झगड़ा ये है कि अब्राहम के जो दास लोग थे और लूत के दासों के बीच में एक झगड़ा उत्पन्न होती है। And then we see that Abraham is requesting Lot to choose for himself a land in that region. और मेरे प्यारो अब्राहम लूत से गुजारिश करते हैं कि अपने लिए कुछ जो जमीन है व कुछ जो देश है उसको चुनने के लिए उनको गुजारिश करते हैं। And we see that in Genesis chapter 13 verse 11 that Lot chose himself all the plain of Jordan. और मेरे प्यारो अब देखिए लूत जो है जो यॉर्दन नदी का जो तटीय इलाका होता है उस इलाके को वो चुनते हैं। वो 13 अध्याय 11 पद में पढ़ सकते हैं। The first thing, the choice of city. और मेरे प्यारो अब देखिए पहली बात को जो है एक शहर चुनने के विषय में देखते हैं। When there was a strife between Abraham and Lot, what did Abraham choose? मेरे प्यारो इन दोनों के लूत और जो है अब्राहम के विषय में अब्राहम के जीवन में जब लड़ाई होती है और जो विवाद होता है उस वक्त अब्राहम ने क्या चुना? He chose to stay in the land of Canaan, the land which God promised him. और मेरे प्यारो आप देखिए अब्राहम जो है कनान में रहने के लिए तय करते हैं जो देश की परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा बांध करके दिया है। On the other side, what do we read about Lot? In verse 10, 13 verse 10, please read, brother. और 13 अध्याय 10वां पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। 13 का 10। तब लूत ने आंख उठाकर यर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है
जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नाश ना किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। So here we see when Abraham chose Canaan, the promised land by God. On the other hand, we see Lot chose the land or the city, Sodom and Gomorrah, the city that pleased his eyes. मेरे प्यारो, देखिए यहाँ पर दो चयन के विषय में देखते हैं। पहला चयन जब परमेश्वर ने कनान को अब्राहम को चुनने के लिए दिया था, वाचा बांध करके दिया था, उस देश को जो है अब्राहम चुनते हैं और लूत अपने आंखों की अभिलाषा के अनुसार जो आंखों में अच्छा लगा वही देश जो सदोम और अमोरा को चुनते हैं। What does Bible say about Canaan? मेरे प्यारो, कनान के विषय में बाइबल क्या कहती है? We see a lot of things about Canaan, good things and bad things. The bad thing is that Canaan was full of idol worshippers. और मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन में यदि हम देखें तो कनान के विषय में बहुत सारे अच्छाइयां और बुराइयां भी है। और हम लोग बुराइयां ये देख सकते हैं कि कनान देश में मूर्ति पूजा से परिपूर्ण था। That is the only thing according to me that is written on a bad account of Canaan. और मेरे ओर से मैं देखूं तो कनान के विषय में यही एक सबसे बुरी बात थी। You can read all the passages regarding Canaan in Genesis chapter 17 verse 8. There we read it was a land of everlasting possession by God. और मेरे प्यारो, कनान के विषय में विस्तार रीति से आपको यदि पढ़ना है तो उत्पत्ति उसका 17 अध्याय 8वां पद को पढ़ सकते हैं। ये जो इसमें यह कहा गया है कि यहोवा का जो है अनंत काल का देश के रूप में इस कनान को बताई गई है। In Exodus chapter 6 verse 4, we see that it was a land of pilgrimage for Israel. और मेरे प्यारो, जो है निर्गमन का पुस्तक उसका 6वां अध्याय 4था पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो ये देश जो है भ्रमण करने के लिए, इजराइल के भ्रमण करने के लिए एक ऐसा देश था। In Exodus chapter 3 verse 17 and Numbers chapter 13 verse 27, we read that this land was a land of that flows with milk and honey. मेरे प्यारो, निर्गमन का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 17 पद और जो है गिनती का पुस्तक उसका 13 अध्याय 27वां पद को यदि हम लोग अध्ययन करेंगे तो ये देश जो है दुग्ध और मधु प्रवाहित देश थी। And in Deuteronomy chapter 7 verse 1, we see that it was a land of 7 nations, which means it was altogether a big area of 7 nations. ओ मेरे प्यारो, यदि व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय 1 पद को पढ़ेंगे तो कनान देश एक ऐसी देश थी कि वो 7 देशों के साथ जो है मिल करके थी। उसका मतलब वहां की जो इलाका एरिया को देखें तो बहुत बड़ी इलाका थी। And what do we read about Sodom and Gomorrah in Bible? और बाइबल में सोदोम और अमोरा के विषय में हम क्या पढ़ते हैं? In Genesis chapter 18 verse 20 and 21, we read that the Sodom city was grievous with sin and the sin reached God. ओ मेरे प्यारो, यदि उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 20वां पद और 21वां पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे, सोदोम एक ऐसी शहर थी, वो शहर पाप से परिपूर्ण थी और वो पाप जो है परमेश्वर के सामने पहुंची थी। ऐसी बातों को हम सोदोम के विषय में पढ़ सकते हैं। It was the most wicked and most dirtiest city mentioned in the Bible. ओ मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन में यदि हम लोग पढ़ें तो ये शहर सबसे दुष्ट और पाप भरा एक ऐसी देश के रूप में पढ़ सकते हैं। In chapter 13 verse 13, the passage which we read now, there it's written that it was the city which had the highest pitch of wickedness. ओ मेरे प्यारो, यदि 13 अध्याय 13 पद को भी हम लोग पढ़ेंगे तो जो है यहाँ पर सबसे बड़े दुष्ट और पापी लोग वहां पर रहते थे। In Ezekiel chapter 16 verse 49 and 50, we read that it was a city which had
which was a city of pride, the people who lived with pride. मेरे प्यारो, एजिकियल का पुस्तक उसका 16 अध्याय 49 और 50वां पद को यदि पढ़ेंगे तो यहाँ के लोग जो है बहुत घमंड के साथ रहने वाले लोग थे. It was a city with excess of food, and it was a city wherein the people did not aid poor or needy. ओ मेरे प्यारो, ये एक शहर ऐसा था कि जो है खाना और भोजन जो है जो व्यंजन से परितृप्त होने वाली एक ऐसी शहर थी और गरीबों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाली एक शहर थी. So here we see a big difference between the choice of city of Abraham and Lot. ओ मेरे प्यारो, यहाँ पर जो है अब्राहम और लूत के विषय में व जीवन को देखें तो दोनों ने जो शहर के चुनने के विषय में एक बहुत बड़ी अंतर को देख सकते हैं. We read about Abraham that Abraham was righteous, and we read about Lot that Lot was also righteous. But we see their point of view, their approach to the call which God gave them. मेरे प्यारो, हम दोनों के विषय में यदि देखें, अब्राहम भी धार्मिक व्यक्ति थे, लोत भी धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन दोनों का चयन के विषय में देखो तो लोत ने जो है इस दुष्ट भरा व पाप भरा शहर को उन्होंने चुना. We read in Hebrews that Abraham waited on a city which founder and the builder and the maker was God. मेरे प्यारो, इब्रानियों का पत्री में हम लोग पढ़ते हैं कि अब्राहम ऐसी एक शहर का, ऐसी एक जो जगह का वो इंतजार कर रहे थे जिस जगह को कि परमेश्वर ने स्थापना की हो, उसकी नींव जो है परमेश्वर ने डाला हो, उस शहर का निर्माण परमेश्वर ने की हो, ऐसी शहर का इंतजार अब्राहम कर रहे थे. Whereas we read about Job that he chose the city which pleased his eyes. मेरे प्यारो, हम लूत के विषय में देखें तो आंखों में जो अच्छा लगा ऐसी शहर को ही लूत चुनते हैं. So today there is a question for all of us. What is the call? What is our viewpoint, or what is our approach to the call of God? मेरे प्यारो, आज आपके और मेरे सामने एक सवाल है. वो सवाल ये है कि परमेश्वर ने यदि आपको और मुझे बुलाया है, उस बुलाहट को हम किस तरीके से स्वीकारते हैं, किस तरीके से हम लोग लेते हैं. If God has called you, go into that city and I'll make you a big nation and make you a big name. What is your approach to that call? मेरे प्यारो, यदि प्रभु ने आपको यदि बुलाया है, उस शहर में जाइए और जो है वंशज जब बढ़ाइए, आप देश का नाम को रोशन करिए, आपका नाम को बढ़ाइए. और आपका बुलाहट क्या है मेरे प्यारो? Or do we choose a city where we could find a good profession and we could fix our financial credits up? मेरे प्यारो, क्या हम ऐसी शहर को चुनते हैं जहां पर जो है हम ऐसा देखते हैं कि जहां पर अच्छाई है और उसके साथ साथ हमारा जो पैसा लेन देन या फिर धन दौलत को हम लोग बढ़ा सकते हैं, ऐसी शहर को हम लोग चुनते हैं. The choice is ours, dear brethren. मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो चयन आपका और मेरा है. The second good thing that the second difference that I saw in Abraham and Lot was chapter 18. और दूसरा एक भेद व अंतर को मैंने अब्राहम और लूत के जीवन में देखा है, वो है 18वां अध्याय. Chapter 18 and 19, where we see that both Abraham and Lot were sitting in front of a city. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि जो है 18वां और 19वां अध्याय को यदि हम लोग पढ़ेंगे, अब्राहम भी एक शहर के सामने वो बैठे हुए हैं, लूत भी एक शहर के आंगन में व फाटक में बैठे हुए हैं. Abraham was the head of his family, and so he is sitting out of the tent, whereas we see that Lot, he may be a dignitary of the city, and so he is sitting at the gate.
मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि अब्राहम जो है घर के मुखिया होने के नाते अपने तंबू के बाहर जो है वो बैठे हुए हैं। और हम लोग यदि लूत के जीवन में भी देखें तो जो है लूत हो सकते हैं कि उस शहर के एक जाने माने व्यक्ति हैं, इसीलिए उस फाटक के सामने वो बैठे हुए हैं। In chapter 18, we read that three people, from which one is said to be God Himself, who came to visit Abraham. मेरे प्यारो, 18 अध्याय में 3 एक ऐसे व्यक्ति आकर के उनको जो है अब्राहम के पास आते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं उनको मिलने के लिए आते हैं। In verse 3, I would like someone to read verse 3, 4, and 5. और तीसरा, चौथा और पांचवा पद जो है कोई पढ़ने में हमारी मदद करें। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। We see two things in both Abraham and Lot. मेरे प्यारो, अब्राहम और लूत के जीवन में दो ऐसे विषय को हम लोग देखते हैं। Their respect to the men of God and their hospitality to the men of God. और परमेश्वर के जन को वे लोग आदर करते हैं और उनको जो है अतिथि सत्कार करते हैं। We see that when Abraham saw the three men of God, we see that Abraham ran to them and he fell down on his ground and bowed down to him. That means he almost lied down towards the people, the three men. और मेरे प्यारो, आप देखिए कि जो है अब्राहम जैसे ही उन तीन पुरुषों को वो देखते हैं, तुरंत दौड़ करके जाते हैं और जो है वो दंडवत करते हैं। वो तीनों व्यक्ति के सामने वो झुक करके प्रणाम करने जैसा वो काम करते हैं। Whereas in chapter 19 verse 2 we see the same thing in Lot, but there is a difference. Lot is just bowing down like this, which means only his face is directing to the ground. He is not completely lying down before the men. मेरे प्यारो, आप देखिए कि जो है 19वां अध्याय दूसरा पद को यदि देखें तो लूत क्या कर रहे हैं ना, अपने आप को जो है झुक रहे हैं, थोड़ा सा वो जो है सिर को ही झुका रहे हैं, ना कि अब्राहम के जैसा साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। And we see that both of them, the choice of food they bring for the men of God. और मेरे प्यारो, आप देखिए दोनों के जीवन में जो है, जो परमेश्वर के जो जन हैं, उन लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार भोजन लाने का प्रयास कर रहे हैं। Abraham bought cakes, he brought good meat of a good calf, and he brought milk and butter. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं अब्राहम जो है उन लोगों के लिए जो है रोटी लाते हैं और उसके साथ साथ जो है अच्छा मांस भी ले आते हैं और उसके साथ साथ कुछ ऐसे जो बटर भी ले आते हैं। And we see Lot, he is bringing just unleavened bread for the men of God. लेकिन हम लोग लूत के जीवन में हम लोग देखें तो जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ जो अखमीरी रोटी को ले आते हैं, बिना खमीर की रोटी को ले आते हैं। And we see, if you see, before the commandment were given to children of Israel, the unleavened bread was given to the fugitives, the one who are suffering in the jail. One who is suffering in the jail, fugitives, अपराधी। Okay. तो हम लोग देखते हैं मेरे प्यारो कि जो है इजराइल का नियम के अनुसार यदि हम लोग देखेंगे तो फिर हम लोग देखते हैं कि अखमीरी रोटी जो है, जो लोग अपराध करके आते हैं ऐसे लोगों को अखमीरी रोटी दी जाती है।
No, brother. Before the commandments were given to Israel, history says that unleavened bread was given to the fugitives. ओके जो आज्ञा देने से पहले इस बात को हम लोग देखते हैं कि जो है ये अखमीरी रोटी जो अपराध जो है करते हैं ऐसे लोगों को ये अखमीरी रोटी दिया जाता था. It is a poor quality of bread which contains just flour and water. मेरे प्यारो ये जो है एक साधारण का रोटी समान है, ज्यादा अच्छा रोटी नहीं है क्योंकि इसमें पानी और जो है आटा ही होता है. Here we can see a vast difference between the hospitality of Abraham and Lot. मेरे प्यारो इन दोनों के बीच में हम लोग यदि देखें तो जो है एक बहुत बड़ी अंतर को हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से ये दोनों जो है आतिथ्य सत्कार करते हैं. Why is that there is a big difference between the hospitality of Abraham and the hospitality of Lot? मेरे प्यारो जो है अब्राहम का अतिथि सत्कार और लूत की अतिथि सत्कार में क्यों हम लोग ऐसी अंतर को देख सकते हैं? Both were righteous, but why this? दोनों ही धर्मी थे, लेकिन ऐसा क्यों हो रही है? It's because Abraham had a good connection, or he had a well-maintained fellowship with God, whereas Lot, we see that he did not have a good fellowship with God. He was just a just man. ओ मेरे प्यारो ये इसीलिए ऐसा है कि अब्राहम जो है परमेश्वर के साथ उनका जो है एक गहरी रिश्ता थी और लूत के जीवन में यदि देखें तो जो है वो धर्मी तो थे लेकिन जो है परमेश्वर के साथ उनकी जो है अच्छा संबंध व रिश्ता नहीं था. What does Bible say about fellowship? और सहभागिता के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है? Fellowship mainly shows two things. One is walking in light and walking in unity. और मेरे प्यारो ये सहभागिता जो है हमें दो बातों को दिखाती है. एक तो जो है ज्योति में चलना और दूसरा है जो है मेल मिलाप से चलना. We read both of this in 1 John chapter 1 verse 7 and John chapter 17 verse 21. और जो है इस बात को पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां पद और यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 17 वर्स 21. So the question is अध्याय 27वां पद में पढ़ सकते हैं. So the question is how is our fellowship or how is our hospitality and our nearness to God? ओ मेरे प्यारो हमें ये सवाल ये हमारे सामने आता है. वो सवाल ये है कि हम किस तरीके से जो है अतिथि सत्कार करते हैं और हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ कैसा है. We read about Abraham that Abraham walked with God, he talked with God, and we see that God himself saying that shall I do anything without conveying a thing to Abraham. ओ मेरे प्यारो आप देखिए अब्राहम जो है परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर के साथ वो वार्तालाप करते थे और परमेश्वर खुद कहते हैं क्या मैं बिना पूछे बिना अब्राहम से मैं बात करे कुछ काम को मैं कर सकता हूं. Whereas we see about Lot, there is no such reference which says that Lot talked with God or walked with God or he did everything according to God's heart. We read none of these things. ओ मेरे प्यारो लूत का जीवन में यदि देखें तो ऐसी बातों को हम लोग नहीं देखते हैं कि जो है लूत परमेश्वर के साथ साथ चला या फिर परमेश्वर के साथ वार्तालाप किया या फिर ऐसी बातें जो है कुछ भी हम लूत के जीवन से नहीं देख सकते. I always have a statement like this whenever I preach that if your vertical fellowship with God is proper, your horizontal fellowship with all the people and the hospitality you show will be automatically cured or will be automatically blessed.
ओ मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि आपका जो है सीधी तरीके से आपका रिश्ता यदि परमेश्वर के साथ सही है, तो दूसरों के साथ भी जो है ये समांतर लाइन में भी दूसरों के साथ भी आपका रिश्ता सही होगा और आप जो है आपका अतिथि सत्कार भी जो है दिखाई देगा। You can clearly see that in the life of Abraham and Lot. Abraham talked with God, and so we see that he had a good hospitality. The hospitality that God pleases, that was seen in him. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि अब्राहम का जीवन में जो है एक जो है संपर्क को हम लोग देख सकते हैं, जो है एक सहभागिता को हम लोग देख सकते हैं, और वही सहभागिता के कारण अब्राहम का जीवन में जो है एक अतिथि सत्कार को भी हम लोग देख सकते हैं। So are we like Abraham or are we like Lot? मेरे प्यारो, अभी सवाल ये है, क्या हम अब्राहम के समान हैं या फिर लूत के समान हैं? In Hebrews chapter 13 verse 2, we say that do not forget to entertain strangers, for doing such some entertain gods. और मेरे प्यारो, इब्रानी उसका जो है 13 अध्याय 2 पद में हम लोग देखते हैं कि अतिथि सत्कार जो है करना ना भूलना। ऐसा अतिथि सत्कार करते हुए जो है स्वर्गदूतों को भी कुछ लोगों ने अतिथि सत्कार किया है करके परमेश्वर का वचन बताती है। So let's maintain a good fellowship with God the Father, or else all our hospitality, all our fellowship with the fellow brethren will go in vain. ओ मेरे प्यारो, यदि हम पिता परमेश्वर के साथ यदि हमारा रिश्ता सही नहीं है, तो फिर हम दूसरों को जो कुछ भी अतिथि सत्कार करते हैं वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। The third thing which I liked in both their lives is the wife of Abraham, Sarah, and the wife of Lot. ओ मेरे प्यारो, जो तीसरी बात मुझे बहुत अच्छा लगा वो है अब्राहम और सारा के जीवन और उसके साथ साथ लूत का जीवन। We see many weaknesses about Sarah, and we see many strengths about Sarah. मेरे प्यारो, सारा के जीवन में यदि हम लोग देखें तो बहुत सारे जो है दुर्बलता को हम लोग देख सकते हैं और बहुत सारे ऐसे जो है सबलता को भी हम लोग देख सकते हैं। We see in 1 Peter chapter 3 verse 5 that Sarah was submissive to her husband. She was the best example of submissiveness to husbands. और मेरे प्यारो, यदि पहला पत्रस 3 अध्याय 5वां अध्याय को 5वां पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो सारा जो है हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है कि अपना पति के लिए बहुत ही ज्यादा वो समर्पित एक स्त्री थी। In Genesis chapter 21 verse 6 we read that she was the one who praised God. और उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय 6वां पद को यदि हम लोग पढ़ें तो वो एक ऐसी स्त्री थी कि वो परमेश्वर की प्रशंसा करती है, बढ़ाई करती है। In Hebrews chapter 11 verse 11 we read that she considered him faithful who had promised her a son. ओ मेरे प्यारो, आप देखिए कि जो है इब्रानी उसका 11 अध्याय 11 पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हमें यह समझ में आता है कि जिन्होंने एक पुत्र देने का वाचा किया उसके सामने जो है वो विश्वस्त ठहरती है। And in 1 Peter 3 verse 6 we read that she was a fearless woman. ओ मेरे प्यारो, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और जो है 6वां पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हमें यह समझ में आता है कि वो जो है एक निर्भय स्त्री थी। We see all these things in Sarah, whereas about Lot's wife we see only 3 passages in Bible. ओ मेरे प्यारो, यदि हम जो है सारा के जीवन में हम लोग देखें तो ये सब विषय को देख सकते हैं, लेकिन लूत को जीवन में देखें तो हम लोग जो है 3 ऐसी अध्यायों को देख सकते हैं। In Genesis chapter 19 we see twice Lot's wife. और जो है उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय देखें तो 2 बार लूत का पत्नी के विषय में पढ़ सकते हैं। And in Luke chapter 17 verse 32 we see Jesus quoting Lot's wife. और मेरे प्यारो, जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 32वां पद को यदि हम लोग देखें तो प्रभु यीशु मसीह लूत के पत्नी के विषय में कहते हैं।
why is there such a big difference between Abraham's wife and Lot's wife? और मेरे प्यारो जो है क्यों लूत का पत्नी और अब्राहम का पत्नी में हम लोग जो है एक बहुत बड़ी अंतराल को भेद को देखते हैं. We see Abraham's wife was submissive. She praised God. She considered God faithful, and she was fearless. Whereas we read about Lot that she turned and looked back. She disbelieved the promise of God. ओ मेरे प्यारो यदि हम जो है सारा का जीवन में हम लोग देखें तो वो एक विश्वस्त स्त्री थी और जो है एक समर्पित स्त्री थी और निर्भय स्त्री थी. लेकिन लूत का पत्नी के विषय में यदि हम लोग देखते हैं तो वो स्त्री जो है परमेश्वर की जो वाचाओं को वो नहीं मानी, नहीं समझी और पीछे पलट करके वो देखती है. God told that God had promised, or the men of God who came to visit Lot, they said that we will save you and take you to a safer place. But Lot's wife, we see, she was worried about her riches that she had left behind in the city. वो मेरे प्यारो जैसे कि परमेश्वर के आ करके परमेश्वर लूत से वाचा बांधते हैं कि आपको जो है सुरक्षा दे करके हम दूसरी जगह आपको ले जाएंगे. लेकिन लूत का पत्नी के विषय में यदि देखेंगे तो अपना धन और दौलत के प्रति बहुत चिंतित थी. वे लोग जा रहे थे तब वो पीछे मुड़ करके वो लौट करके धन दौलत के पीछे वो देख लेती है. So the question is, a question to all the sisters here is, how is your attitude towards your family? मेरे प्यारो एक सवाल अपने बहनों के लिए यह है कि आपका परिवार के लिए आपका रुख कैसा है. A family's strong root is a woman. मेरे That we read in प्यारो Proverbs chapter 31 verse 12. और नीति वचन उसका 31वां अध्याय 12 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि परिवार का जो है मुख्य जड़ एक स्त्री ही होती है. So to all the sisters, how is your attitude towards your family, or how is your attitude, the call which God has given to you? मेरे प्यारो अभी एक सवाल जो है अपना बहनों के लिए यह है कि आपका स्वभाव अपना परिवार के प्रति कैसा है, आपका रुख आपका परिवार के प्रति कैसा है, आप किस तरीके से अपना जो है जीवन को गुजारते हैं, आपका जो बुलाहट को किस तरीके से आप समझते हैं. Are you stronger? Are you faithful? Are you submissive like Sarah, or are you worried about the riches that is in your family or that you have left behind? ओ मेरे प्यारो क्या जो है आप जो है सारा के समान समर्पित है क्या, या फिर जो है सारा के जैसा एक निर्भय स्त्री है क्या, सारा के जैसा क्या आप जो है एक समर्पित स्त्री है क्या, या फिर लूत का पत्नी के समान आप अपना धन और दौलत के प्रति चिंतित है. Another, we see one more example, Hannah, the mother of Samuel, the prophet. ओ मेरे प्यारो एक और उदाहरण हमारे सामने है, वो है हन्ना सामुएल के, जो सामुएल भविष्यद्वक्ता की माँ थी. She believed God will give her a son, and she regularly prayed, and she was stronger before the Lord God, and she dedicated her son for the service of God. ओ मेरे प्यारो जो है हन्ना के जीवन में बहुत दृढ़ विश्वास था. वो दृढ़ विश्वास ये थी कि परमेश्वर जो है उसको एक पुत्र देंगे, और जब परमेश्वर ने उसको एक पुत्र देते हैं वो उस पुत्र को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर देती है. So to all the sisters, and how is your attitude? We better turn ourselves and be an example, just like Sarah. We hope that, like unlike Sarah, we also may be mentioned that Sarah was faithful, or this sister was faithful. मेरे प्यारो जैसे कि हमारे पीछे बीते हुए दिनों को सब कुछ को भूल करके आइए मोड़ करके सारा के समान अपना जीवन को गुजारे. और जो है कोई हमारे बारे में जैसे कि उसके सारा के विषय में कहा गया है कि ये सारा जो है बहुत विश्वस्त स्त्री थी, वैसे ही आपके विषय में ये बहन बहुत विश्वस्त बहन है करके लोग आपके विषय में ऐसे ही गवाही दे. But not only to the sisters, but also to the brothers,
we are the bride of Christ, and so we also need to be submissive like Sarah, and we need to be faithful, and we need to be to believe in God who is faithful, who called us. मेरे प्यारो, ये जो है बहनों के लिए ही नहीं बल्कि अपने भाइयों के लिए भी है, क्योंकि हम जो है प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन के समान है। हमें भी जो है क्या करना है ना, अपने आप को जो है समर्पित जीवन, अपने आप को समर्पण करने की आवश्यकता है और सारा के समान एक विश्वस्त जीवन को इस संसार में बिताने की आवश्यकता है। Like Sarah, let us respond to God who called us and address him, Master, I am here. मेरे प्यारो, जैसे कि सारा को परमेश्वर ने बुलाया था, वैसे ही परमेश्वर का बुलाहट को सुनिए और हे मालिक, हे गुरु, मैं यहाँ पर तैयार हूं करके उसकी पुकार का जवाब दीजिए। Let's alter our ways before God. मेरे प्यारो, आइए जो है परमेश्वर के सामने हमारी रास्ताओं को जो है जिस मार्ग में चलते हैं उन मार्गों को सुधार करके चले। The fourth thing I saw was the difference between Abraham and Lot was their children. और मेरे चौथे विषय को मैंने उनके विषय में निरीक्षण किया है, वो है सारा और अब्राहम और लूत का बच्चों के जीवन में। We see about Isaac in chapter 22 and 24 that he was obedient and he was patient for God's call. और मेरे प्यारो, जब हम लोग 22वां अध्याय से 24वां अध्याय देखें तो अब्राहम का जो पुत्र इसहाक का जीवन में देखते हैं, वो इसहाक जो है आज्ञाकारी था, उसके साथ साथ धीरज धरने वाला एक व्यक्ति था। In Genesis 24, we see that he waited for the choice of God. God had chosen a bride for him, and he waited for the perfect time for his marriage. ओ मेरे प्यारो, जब उत्पत्ति 24वां अध्याय को यदि हम लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जो है इसहाक के लिए ऐसा एक पत्नी उसने चुन करके रखा था, उसके लिए इसहाक परमेश्वर का समय का इंतजार किया। Which shows that he had faith in God, and we see in chapter 26 onwards that he was fruitful. He became fruitful. मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो है इसहाक, उसके लिए परमेश्वर का जो वाचा के लिए, उस प्रतिज्ञा के लिए उसने इंतजार किया, और फिर बाद में 24 अध्याय के आगे यदि हम लोग पढ़ते हैं तो जो है बहुत सारे उसके जीवन में फल हम लोग देख सकते हैं। In Genesis chapter 26, we see that he was a peacemaker. He loved peace. और मेरे प्यारो, उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय यदि हम लोग पढ़ेंगे तो इसहाक एक शांति स्थापना करने वाला एक व्यक्ति था, एक मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति था, जो व्यक्ति की ऐसे शांति का प्यार व शांति को चाहने वाला एक व्यक्ति था। He had a conflict with Abimelech, and we see that every time he was persecuted or he was troubled, we see that Isaac himself withdrew from them. He did not fight with them. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं अबीमेलेक के साथ जो है उनका जो है बहुत बड़ी एक झड़प होती है, फिर भी इसहाक जो है उनके साथ जा करके ना लड़ करके वो उनसे दूर रहने का प्रयास किया था। Such a good character we see in Isaac. मेरे प्यारो, कितना अच्छा एक स्वभाव को इसहाक का जीवन से हम देख सकते हैं। On the other side, we see the children of Lot. और दूसरे ओर जो है लूत का बच्चों के विषय में हम इस तरीके से देखते हैं। The children of Lot, they are mentioned only once, but that one time they dealt very wickedly with their father before God. मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि जो है लूत का जो बच्चों के विषय में एक ही बार परमेश्वर के वचन में बताया तो गया है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर और उनके पिता के सामने बहुत ही बुरी तरीके से, दुष्ट तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है। That thing was very disgraceful thing in the sight of God. They lied with their father. ओ मेरे प्यारो, ये तो परमेश्वर के सामने जो है एक अनहोनी है, ये बहुत बुरी बात है कि जो है अपना पिता के साथ उन्होंने संपर्क रखा।
Like Isaac, they did not wait on for God to bring them a bridegroom for them. मेरे प्यारो, इसहाक के समान जो है वे लोग एक जो है इंतजार नहीं किया, परमेश्वर का समय का इंतजार नहीं किया. They came out, they were rescued, but still they did not leave the qualities of the land of Sodom. They brought the Oh. wickedness. मेरे प्यारो, भले ही उस जगह से वे लोग जो है उस दुष्टता की जगह से निकाल करके तो आ तो गए, और जो है परमेश्वर ने उनको उद्धार करके ले तो आया, लेकिन वहां की स्वभाव को उन्होंने नहीं छोड़ पाया. And we see that Isaac, through Isaac, we see a great nation, Israel, was born. Whereas we see through Lot's children, we see Ammon and Moab, the biggest rivals of Israel, were born. ओ मेरे प्यारो, जो है इसहाक का जीवन से एक बहुत बड़ी देश उत्पन्न होती है, वो है इज़राइल. इसहाक का जीवन से उत्पन्न होती है, लेकिन जो है कि लूत का बच्चों के जीवन से हम लोग जो है इज़राइल का बहुत बड़े दुश्मन उत्पन्न होते हैं, वो है अमोनियों और मोआबियों. So let's think for a moment, how are our children? मेरे प्यारो, आइए अपने बारे में थोड़ी देर बैठ करके सोचें, हमारे बच्चे कैसे हैं मेरे प्यारो. Like we always say, like parents, like children. मेरे प्यारो, हम हर समय कहते हैं जैसे माँ बाप वैसे ही बच्चे. Similarly, we see Abraham was faithful, and we see that Isaac was faithful too. मेरे प्यारो, वैसे ही जो है हम लोग देखते हैं अब्राहम बहुत विश्वस्त थे, और वैसे ही इसहाक भी विश्वस्त पाए गए. Lot wasn't faithful. He lost the fellowship with God, and similarly, we see their children became the most wicked people of this earth. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि लूत जो है भले धर्मी तो थे, लेकिन वो विश्वस्त नहीं पाए गए. वैसे ही जो उनके बच्चे जो थे, वे लोग भी जो है विश्वस्त नहीं पाए गए. So the main thing lies with us, how we are before God, and the next generation depends on our attitude before God. ओ मेरे प्यारो, अभी एक सवाल, बहुत बड़ी सवाल आपके सामने है कि आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है. आने वाला पीढ़ी जो है आपके ऊपर निर्भर करता है मेरे प्यार. And the last thing that I would bring before you is the character themselves, that is Abraham and Lot. और मेरे प्यारो, अभी आखिरी बात जो है आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं, वो है अब्राहम और लूत का स्वभाव को. About Abraham, we see many things in the word of God. मेरे प्यारो, अब्राहम का जीवन के विषय में देखें तो परमेश्वर का वचन में बहुत सारी ऐसी भली भली बातें अब्राहम के विषय में कही गई है. In chapter 12, 13, and 14, we see that Abraham was faithful. God blessed him. He was obedient. He listened to God. He talked with God. He supported his wife. And we see that he was a wonderful father and he loved his child, that we see in chapter 22. And the last thing, the main thing, is that he heeded God's calling. ओ मेरे प्यारो, जो है 12, 13 और 14 अध्याय और 22वां अध्याय यदि हम लोग पढ़ेंगे तो जो है अब्राहम परमेश्वर का पुकार को सुनने वाला एक व्यक्ति था, अपना पत्नी को जो है सहयोग करने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर के सामने जो है विश्वस्त रहने वाला एक व्यक्ति था. जो है अब्राहम जो है अपना बेटा को प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था. Whereas we read about Lot, that in 2 Peter 2 verse 7, I would like to read that verse. और जो है मैं एक पद को मैं पढ़ना चाहता हूं लूत के विषय में. दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय 7वां पद. दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय 7वां पद. There we see that, and delivered righteous Lot, who was oppressed with the filthy conduct of the wicked. For that righteous man dwelling among them
tormented his righteous soul from day to day by seeing and hearing their lawless deeds. मेरे प्यारो, आइए हम लोग उस पद को पढ़ लेते हैं। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। Are we like Lot or are we like Abraham? Are we pressed seeing the wickedness on this earth? मेरे प्यारो, क्या हम जो है अब्राहम के समान हैं या फिर लूत के समान हैं? इस संसार के जो है जो दुष्टता को देख करके क्या हम दुखी होते हैं क्या? Are we pressed like Lot and we get carried away from God? मेरे प्यारो, क्या हम इस संसार के जो है जो अधर्म में पड़ करके जो है क्या हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं क्या? Or are we like Abraham, who walked with God and we see nothing, no unrighteousness is seen in him, and we see that he dealt very righteously with all the evil around him. मेरे प्यारो, क्या हम अब्राहम के समान हैं? अब्राहम जिन्होंने जो है हर परिस्थितियों में, हर मुकाम में धार्मिकता के साथ जो है अपना जीवन को उन्होंने व्यतीत किया। जो अधर्म और पाप जो है दुनिया में थे, फिर भी वो धार्मिकता के समान अपना जीवन को गुजारा। क्या हम उसके समान हैं? Abraham listened to the God's call, whereas we see that Lot listened to his eyes and his mind. मेरे प्यारो, हम लोग देखें तो अब्राहम परमेश्वर का बुलाहट को उन्होंने सुना और उसके अनुसार उसने चला, जबकि लूत के जीवन में देखें तो अपनी आंखों की बातों को उसने ध्यान दिया और अपनी मन की बातों को उसने सुना। Abraham did a mistake in the land of Egypt and he immediately corrected it, whereas we see about Lot, he did a mistake by going into Sodom and Gomorrah. And we see that Abraham, he delivered Lot, but again we see that Lot went and lived there again. ओ मेरे प्यारो, आप देखिए कि जो है अब्राहम जो है मिस्र देश में जा करके उसने गलती तो करी, लेकिन उसने पश्चाताप करके जो है उस गलती को उसने सुधार लिया। और हम लोग देखते हैं कि लूत के जीवन में सदोम और अमोरा में रहते हुए उसने पाप का जो जगह में रहने के बाद जो है अब्राहम ने उस पाप करके बचाया, फिर भी उसी जगह में फिर से अपना जीवन को व्यतीत करता है। We see that he did not lead his wife and his children. मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि लूत जो है अपना जीवन को, अपना बच्चों और अपना बीवियों का जीवन को उसने सुधार नहीं पाया। He disbelieved. In Genesis chapter 19 we see that he disbelieved the call of God. मेरे प्यारो, उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय में यदि हम लोग देखेंगे, परमेश्वर की बुलाहट को उसने जो है विश्वास नहीं किया। When the angel of the Lord said that go into that city which is far one, Lot is saying, no, I can't go there. This city is nearby and I can go there. मेरे प्यारो, जब स्वर्ग का दूत आकर के परमेश्वर का दूत आकर के जब लूत को कहते हैं जाओ उस देश में, उस दूर देश में अब जाओ, लेकिन लूत कहते हैं नहीं नहीं, मैं इतना दूर नहीं जा सकता, यहाँ पर पास में एक शहर है, वहां मैं जाना चाहता। Today a question for all of us: are you righteous or oppressed like Lot, or are you willing like Abraham? मेरे प्यारो, अभी सवाल आपकी मेरे सामने है। मेरे प्यारो, क्या आप और मैं धर्मी रहते हुए जो है पाप का जगह में रह करके क्या हम पीड़ित हैं, या फिर अब्राहम के समान परमेश्वर का बुलाहट को सुन करके धर्मी हो करके उसकी आज्ञाकारी हम करते हैं? Second question: are you supporting your family, your wife and your children? अभी एक सवाल हम लोग पूछ सकते हैं, वो सवाल ये है, क्या आपका परिवार को आप जो है देखभाल करते हैं, आप उसका परिवार का जो है आप मदद करते हैं क्या? God says that in Word of God we read that the children, they are gift of God, they are God's promise.
और मेरे प्यारो, हम लोग परमेश्वर का वचन में देखते हैं जो बच्चे हैं वो बच्चे परमेश्वर का वाचा व परमेश्वर के प्रतिज्ञा किया हुआ बच्चे हैं। In Ephesians 6 verse 4, we see that do not provoke your children, but train them in love. मेरे प्यारो, इफिसियों उसका 6वां अध्याय 4था पद में हम लोग पढ़ते हैं, अपना बच्चों को जो है ईर्ष्या व रीस मत दिलाओ, उनको प्रेम से प्रतिपालन करो। Because we are the future of our children. How the attitude present, our present attitude is our children's future. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि जो है जो वर्तमान का हमारा जो स्वभाव है हमारे बच्चों का भविष्य को दर्शाता है। Sorry, got disconnected. We see that how are we towards our children. और मेरे प्यारो, अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चों के प्रति हम कैसे हैं। Your voice is not coming, brother. Brother, are you there? Can you listen yes, to me? Yes, I can listen to you, brother. Okay. So the third question that comes before us is, how is your attitude before God? Do you walk with Him? Do you talk with Him? Do you have fellowship with Him? और तीसरी सवाल आपके और मेरे सामने है मेरे प्यारों, वो सवाल ये है, क्या परमेश्वर के साथ आप वार्तालाप करते हैं क्या? क्या परमेश्वर के साथ जो है आप चलते हैं क्या? Abraham had a good fellowship. He walked with God, he talked with God, and God walked with him. And so we see he had a good fellowship with all the people around him. Even he had a good hospitality. ओ मेरे प्यारो, वैसे ही हम लोग अब्राहम का जीवन को देखते हैं, वो परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर के साथ वार्तालाप किया, परमेश्वर भी जो है अब्राहम के साथ वार्तालाप किया, और अब्राहम का जीवन में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत अच्छा एक आतिथ्य सत्कार का स्वभाव को अब्राहम का जीवन से हम देख सकते हैं। A question to all the sisters: are you the backbone of the family? Are you strong like Sarah? मेरे प्यारों, अभी एक सवाल ये है बहनों के लिए, क्या मेरे प्यारे बहनों, आपका जो परिवार के लिए एक खंबा के तरह, एक नींव के खंबा के तरह आप खड़े हैं क्या? और आपका परिवार के लिए एक बहुत बड़ा मददगार के तरह जो है आप खड़े हैं क्या? A question to all the believers: we are the bride of Christ. Are we faithful to Christ? और मेरे प्यारो, अभी सभी विश्वासियों के लिए एक सवाल है कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वस्त पाए जाते हैं क्या? Or are we like the wife of Lot, who is turning back to the riches of this world? ओ मेरे प्यारो, लूत के पत्नी के समान क्या हम हैं क्या? इस संसार के धन और दौलत को देख करके पीछे मोड़ करके हम लोग देखने वाले लोग हैं क्या? And the last thing we see Lot. He had a lukewarm type of nature that is mentioned in the Revelation. ओ मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि जो है लूत का जीवन कैसा है ना, प्रकाशित वाक्य में जैसे बताई गई है, गुनगुनाहट पानी के समान का जीवन ना हो।
Let's turn to that chapter. I would like to bring that chapter in front of you, and we'll end the message here. और उस अध्याय की ओर हम लोग चलते हैं और फिर बाद में हमारा जो संदेश को समाप्त करेंगे। Verses 15 and verses 20. I would like to read both these verses. आइए हम लोग जो है 15 और 16 पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। Chapter 3 verse 15. हाँ, चैप्टर 3 Chapter 3 तीसरा verse अध्याय, 15. यस, तीसरा अध्याय 15 और 16 पद को पढ़ लेते हैं। 15 और 20वां। 15 और 20वां, ओके, 15 और 20वां पद को पढ़ लेते हैं। कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि ठंडा या गर्म होता। 20वां पद को हम लोग पढ़ते हैं। देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी शब्द को सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आ करके उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। The biggest question, are you lukewarm? God knows our work. God knew that Lot was righteous. मेरे प्यारो, एक सबसे बड़ा सवाल आपके और मेरे सामने है कि परमेश्वर हमारे कामों को वो जानता है और परमेश्वर जो है लूत को भी वो जानता था वो कितना धर्मी था। In Genesis, we read that when in chapter 19 we saw that God visited Abraham, whereas in the next chapter we see that God did not visit Lot. Why is that so? ओ मेरे प्यारो, 19वां अध्याय यदि हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर जो है अब्राहम को दर्शन देते हैं, अब्राहम के पास जाते हैं, लेकिन अगला अध्याय यदि देखेंगे तो लूत के पास परमेश्वर क्यों नहीं जाते? That was because Abraham, he was faithful. He remembered his first love. Whereas we see about Lot, he was lukewarm. He was not very hot and he was neither very cold. He was in between. He was just a righteous man, a normal man before God. ओ मेरे प्यारो, हम लोग देखें तो जो है लूत धर्मी तो था, लेकिन एक साधारण धर्मी के समान, ना वो ठंडा था ना वो गर्म, इसीलिए जो है परमेश्वर उसके पास नहीं जाते हैं मेरे प्यारो। That is why when we read in verse 20, Revelation chapter 3 verse 20, we see that behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come to him and dine with him, and he with me. और इसीलिए हम लोग जो है प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 20वां पद को हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर व प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जो है देख, मैं द्वार के सामने खड़े होकर के खटखटाता हूं, जो व्यक्ति मेरी आवाज को, मेरी पुकार को सुन करके अपने द्वार को खोलता है, मैं अंदर प्रवेश करके उसके साथ में भोजन करूंगा। God stood before Abraham's heart and God stood before Lot's heart. ओ मेरे प्यारो, अब्राहम के जो दिल के द्वार के सामने परमेश्वर खड़े होकर के खटखटाए, अब्राहम ही नहीं, लूत का जो दिल के द्वार के सामने जो है खड़े होकर के उन्होंने खटखटाया। We see Abraham opened the door of promise and invited God inside, but we see Lot, he closed the door of promise, and we see that he was not blessed like Abraham. ओ मेरे प्यारो, अब्राहम ने अपना दिल की दरवाजा को खोल करके जो वाचा परमेश्वर बांधना चाहता था उसके लिए उसने जो है स्वीकारा, उसको ग्रहण किया, लेकिन जब हम लोग लूत के जीवन में देखे, अपना द्वार को उसने नहीं खोला। परमेश्वर का आशीष जैसा अब्राहम ने पाया वैसा आशीष लूत को नहीं मिल पाया। And we see God personally visited Abraham, whereas we see did not visit. He departed from Abraham's place and he did not visit Lot. ओ मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर जो है अब्राहम को जा करके एक और बार दर्शन देते हैं, एक और बार मिलते हैं, जबकि हम लूत के जीवन में देखें तो दोबारा जा करके परमेश्वर लूत को नहीं मिलते हैं। We are in a very pathetic situation. The church is in a very pathetic situation. वर्तमान में यदि हम लोग देखें मेरे प्यारो तो एक भयानक दशा में अभी कलीसिया है। We all have become like Lot. We do not look at our wives. We do not look at our children. We do not look at the promise which God has given us.
and we do not look at a fellowship and the church which God has given to us. ओ मेरे प्यारो, लूत के समान हम बन चुके हैं, जो परमेश्वर ने वाचा बांधा है, उस वाचा को, उस प्रतिज्ञा को हम लोग नहीं देखते। हम जो है हमारा परिवार को ध्यान नहीं देते, परमेश्वर की जो आज्ञाओं को हम जो है पालन नहीं करते। लूत के समान हम लोग बन चुके हैं। We have become like Lot's wife. We are busy in the profession. We are busy in the riches of this world, the money which the world is giving us. ओ मेरे प्यारो, लूत के पत्नी के समान हम लोग बन चुके हैं। हम तो काम जो है कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, और इस संसार का धन और दौलत पाने के लिए ही हम काम कर रहे हैं। Behold, God is standing beside our door, in front of our door. Let's open the door and let's leave leave our nature of lukewarm. ओ मेरे प्यारो, परमेश्वर जो है आपके द्वारे सामने खड़े होकर के खटखटा रहे हैं। आइए जो गुनगुनाहट को छोड़ करके अपना दिल की दरवाजा को खोले। Let's remember our first love like Abraham and be blessed in this land. ओ मेरे प्यारो, आइए अब्राहम के समान अपना पहला प्यार परमेश्वर के साथ जो था उसको हम स्मरण करें, और अब्राहम के समान हमारा जीवन को इस संसार में व्यतीत करें। And one day God will say to us, go into that land, be fruitful, be multiplied. और एक दिन परमेश्वर कहेगा कि जाओ उस देश पे जाओ और तुम जो है फलदायी हो जाओ, फलो फूलो करके परमेश्वर कहेगा। Let's turn our heart to God. May the Lord's name be glorified. आइए अपना जो दिलों को परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर के नाम की महिमा। I thank Sibir uncle also for translating for me wonderfully. I'm grateful to you, brother, to translate you. Thank you so much for the opportunity and the privilege. Thank all the believers who listen to the word of God. God's name be glorified. जितने भाई बहन आज परमेश्वर का वचन को उन्होंने सुना है, मैं सभी लोगों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।